Jai Hind and Citus SBNs, I welcome you all to one of the best series for current affairs, and this is going to be part 2 of FCAT 2024 current affairs. I can assure you one thing, that the maximum questions you'll see in current affairs will be out of this series. Talking about part 1. Part 1 will be very, very important. Please make sure if you've not covered it, you cover it well, because the current affairs that I'm dealing with is something that I am making sure is related to your static as well, because when I talk about GK paper, in GK 25% is what you see from current affairs, whereas 75% is static. So we have to make sure that we have good hold of static portion as well. Talking about myself, guys, I've been All India rank 26 in CDS 2 2018. So my merit, you can go and check on the UPSC website. Talking about 5 times getting recommended through FCAT and CDS entry, that is written qualified. Along with that, also cleared the SSB 5-day long process, went through my medicals and got some medical issue basically, and that's why I'm here and have given already 8,000 plus selection just through my batches. And if I start counting of YouTube, I don't even have a number. Okay, so many students, and it's all because of you. And let's make sure that more of you get into that uniform. For that, please make sure that you join Telegram, because we have a lot of initiatives coming up for FCAT. We're already following GK on Telegram, and that is going to be extremely helpful for all of you. You'll find directly questions coming from there. And talking about Insight SSB app, in case you want to enroll in any of the batches, you can go for this app. The link for the same will be down in the description box. Okay. I hope all the introduction is clear. Now let's begin with the questions without further ado. So let's begin. Coming to the first question, that is, who has been appointed as the 26th Chief of Indian Navy? So as you guys know, that our very own Chief Admiral R. Hari Kumar, he has retired, and now the baton of being the Chief of Indian Navy has been transferred to whom? The answer for the same is Admiral Dinesh Tripathi. Please remember this. And he is 26th Chief. Ye sabse important cheez hai. Okay. Now coming to the next very important thing. As I've told you that I will be making you complete your static part as well. So father of modern navy जो है वो किन्हें बोला जाता है? This is the question. Modern Navy of India भी बोल सकते हैं, या फिर father of Indian Navy भी बोल सकते हैं. So the answer for the same is Chhatrapati Shivaji Maharaj. Okay, and talking about him, absolutely amazing strategies. ऐसी चीज़ें जो आज की डेट में भी कंसिडर की जाती हैं कि हाउ ही हैड सच अमेजिंग स्ट्रैटेजीज, इतनी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस उन्होंने दिखाई व्हेन इट कम्स टू ब्रिटिश गेनिंग कंट्रोल अलोंग द इंडियन कोस्ट्स, एंड दैट इज व्हाई ही इज कंसिडर्ड एज द फादर. ओके, coming to the next question, and this is regarding planets, one of the favorite topic of FCAT. यहाँ से question देखने को मिलता है अलग अलग टाइप से. This I will be covering in my 50 most important topics for sure. तो साइंटिस्ट जो है इन्होंने डिस्कवर किया है एविडेंस ऑफ ओजोन ऑन विच प्लैनेट्स मून कैलिस्टो. सो सबसे पहली बात, क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ मून कौन से प्लैनेट के पास हैं? तो इसका जो आंसर है दैट इज सैटर्न. सैटर्न के पास कितने मून है? 146 मून्स हैं, ध्यान देना. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट जुपिटर, जुपिटर के पास कितने मून्स हैं? जुपिटर के पास हैं 53 मून्स. ओके, इसमें से 26 के अभी तक नाम जो हैं वो नहीं फाइनलाइज हुए हैं. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट कैलिस्टो, ये किसका मून है? ये जुपिटर का मून है. ठीक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. ठीक है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम. और ये किस टाइप का प्लैनेट है? दिस इज टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, या फिर ये आउटर प्लैनेट की तरफ आता है? सो आंसर फॉर द सेम इज इट इज एन आउटर प्लैनेट. इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट को एक एस्ट्रॉइड बेल्ट जो आप यहाँ देख सकते हैं वो उसे क्या करती है? डिफ्रेंशिएट करती है. और जितने भी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं ये कंपैरेटिवली सॉलिड होते हैं, वेयर एज आउटर प्लैनेट्स इनकी डेंसिटी जो होती है वो थोड़ी कम होती है, जिसकी वजह से गैस लाइक प्लैनेट्स हैं. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कैन कम अप इन एग्जामिनेशन, कि कैलिस्टो जो है वो कौन से क्या कहते हैं प्लैनेट का मून है. ओके, आई होप यू विल रिमेंबर द आंसर फॉर द सेम. ऑल्सो जैसे कि हम इनर प्लैनेट्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बोलते हैं, ऐसे ही आउटर प्लैनेट्स को हम क्या बोलते हैं? जोवियन प्लैनेट्स, जिसका मतलब होता है जुपिटर लाइक या फिर गैस जायंट प्लैनेट जो होते हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज वर्ल्ड का डीपेस्ट ब्लू होल जो है, जिसका नाम क्या है? तामजा. प्लीज टेक अ नोट. व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? देख लो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन. वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आंसर क्या था?
मरीना ट्रेंच, है ना। तो इसी तरीके से डीपेस्ट ब्लू होल कौन सा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। प्लीज टेक अ नोट। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्लू होल होता क्या है? ये जो ब्लू होल है बेसिकली क्या होता है, एक वर्टिकल मरीन केव है। पानी में एक वर्टिकल का मतलब आप समझते ही होंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। जैसे अगर ये सरफेस वाटर है तो कुछ इस तरीके से एक मरीन केव जो है वो प्रेजेंट है। हॉरिजॉन्टल कैसे होगी? इस तरीके से। मरीन कैसे होगी? इस तरीके से, ठीक है। सो ये क्या है? मरीन केव है। अब ये बनती कैसे है? 1000 ऑफ ईयर्स, ऐसा नहीं है कि कुछ ही सालों में बन गई। 1000 ऑफ ईयर्स का ग्लेशियल रन ऑफ जो देखा जाता है, जो बच्चे ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे उन्हें ग्लेशियल रन ऑफ का मतलब पता होगा। एंड जो ग्लेशियल रन ऑफ हुआ कब हुआ? आइस एज के टाइम पे हुआ, है ना। सो उसकी वजह से ये केव्स जो है वो बनती हैं, ओके। और ये भी रिसेंटली डिस्कवर की गई है। कहाँ डिस्कवर की गई है? मैक्सिको में। अगर मैं बात करूं कि इसकी डेप्थ क्या थी, 1380 फीट जो है इसकी डेप्थ थी, ठीक है। और अभी तक इसका जो डीपेस्ट पार्ट है वो तो डिस्कवर भी नहीं किया गया है। द डीपेस्ट पार्ट मतलब ये स्टार्टिंग इसकी 1380 फीट से है, अभी तक इसका जो डीपेस्ट पार्ट है दैट हैज नॉट बीन चेक्ड येट, ओके। अब बात कर लेते हैं डीपेस्ट ट्रेंच। जैसे मैंने आपको बताया मरीना ट्रेंच जो है दैट इज द वन। आपको पता है ये कितने फीट नीचे है? इट इज 36,000 37 प्लस माइनस 40 फीट्स, आप मान के चलें इतना डेप्थ है। नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन हियर, है ना। अब इफ आई टॉक अबाउट दिस डीपेस्ट ट्रेंच की बात अगर मैं आपसे करूं, इसका भी एक डीपेस्ट पॉइंट है। तो मरीना ट्रेंच का जो डीपेस्ट पॉइंट है उसका क्या नाम है? चैलेंजर डीप पॉइंट। चैलेंजर डीप पॉइंट, ठीक है। आई होप याद रहेंगी ये सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको, ओके। एंड ये कौन से ओशन में है? दिस इज इन पैसिफिक ओशन, याद रखना, पैसिफिक ओशन में है, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्लू होल। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ऐसा कौन सा स्टेडियम है जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है बाय बीसीसीआई, और ये अपने आप में फर्स्ट ऐसा स्टेडियम बनता है जिसके पास हाइब्रिड पिच है। ना यू लास्ट व्हाट एग्जैक्टली इज दिस हाइब्रिड पिच? तो आपने टर्फ तो सुना ही होगा, जो नेचुरल टर्फ होता है। नेचुरल टर्फ अलोंग विद सिंथेटिक फाइबर्स, ठीक है, अलोंग विद सिंथेटिक फाइबर्स। तो ये होगी हाइब्रिड जो है पिच, ठीक है। सो कहां पर है ये? दिस इज आंसर फॉर द सेम इज बी, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, ओके, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज लता दीननाथ मंगेशकर अवार्ड 2024 ये किसको दिया गया है? सो इसका जो आंसर है दैट इज नन अदर देन आर बिग बी, दैट इज अमिताभ बच्चन, ओके। सो इनको किस लिए दिया है? बिकॉज ऑफ द इनकम्पेरेबल कॉन्ट्रीब्यूशन जो इन्होंने किया है, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे कल्चर हो, चाहे सोशल वर्क हो, हैड कॉन्ट्रीब्यूटेड इन एवरी एस्पेक्ट, okay. Coming to the first question, that is, which of the following have been included in UNESCO's Memory of the World Asia Pacific Regional Register? ठीक है। सो पहली बात, ये जो भी मीटिंग हुई थी, मीटिंग ऑफ व्हाट? मेमोरी ऑफ वर्ल्ड कमिटी फॉर एशिया एंड पैसिफिक, ओके, ये कहां हुई थी? दिस वाज होस्टेड इन उलानबातर, जो कि कहां है? मंगोलिया में है, ठीक है, याद रहेगा ये। दिस कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन कैपिटल्स वाला क्वेश्चन। सो यहां पर ये होस्ट किया गया था, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया की 3 लिटरेरी वर्क्स, और ये तीनों के तीनों लिटरेरी वर्क्स इतने ज्यादा जरूरी है बिकॉज ये नॉर्मली भी एफकैट पूछ लेता है। सो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, एंड दिस क्वेश्चन इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर एफकैट, सीडीएस, एनडीए या फिर आपका सीएपीएफओ, ठीक है, सबके लिए बहुत जरूरी है। तो इसका जो आंसर है दैट इज रामचरितमानस की अगर मैं आपसे बात करूं, सो ये किसने लिखी है? दिस हैज बीन रिटन बाय तुलसीदास, ठीक है। कब? 16th सेंचुरी में उन्होंने लिखी थी, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं पंचतंत्र। पंचतंत्र जो ये किसने लिखी है? ये लिखी है विष्णु शर्मा, एंड ड्यूरिंग हुज पीरियड ही वाज देयर? ही वाज ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड के टाइम पे उन्होंने पंचतंत्र लिखी। अब देखो पंचतंत्र में जो 5 तंत्र हैं, पहला जो आता है दैट इज मित्र भाद, दैट इज लॉस ऑफ फ्रेंड। उसके बाद आता है मित्र लाभ, ठीक है, मतलब फ्रेंड मिला है, लाभ है ना, गेनिंग फ्रेंड्स। फिर आता है शुरुद भेदा। शुरुद भेदा किस लिए होता है? दिस इज कॉजिंग एनी काइंड ऑफ डिसऑर्ड टू द फ्रेंड, ठीक है, किन्हीं भी 2 फ्रेंड्स के बीच में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करना, दैट इज इट। फिर आता है विग्रह, ठीक है, विग्रह दैट इज सेपरेशन ऑफ
टू पीपल, एंड देन आता है संधि. फाइन. सो दीज आर द 5 पार्ट्स ऑफ द पंचतंत्र. याद रहेगा. लास्ट हम लोग आ जाते हैं, दैट इज श्रद्धया लोक लोकना. ये जो है ये किसने लिखी है? दिस हैज बीन रिटन बाय आचार्य आनंद वर्धान. ठीक है, याद रहेगा, आचार्य आनंद वर्धान. सो प्लीज रिमेंबर दिस. ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट आ जाते हैं, फुटबॉल क्लब कौन सा है जिसने 36th ला लीगा टाइटल जीता है? सो इसका जो आंसर हो जाएगा दैट इज रियल मैड्रिड. ये जो है किसका? स्पेन का जो है क्लब है. ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल क्लब है, ये आपको याद रखना है. एंड दिस हैज वन इट. और ये कहाँ हुई थी चैंपियनशिप भी? ये स्पेन में ही हुई थी. सो ला लीगा वॉज वेयर the place was Spain itself. Coming to the next one, that is who among the crew members of NS-25 mission. Now what is this NS-25 mission? NS-25 mission जो है, this has been Jeff Bezos का Blue Origin NS-25 मिशन, जिसमें क्या किया गया है? Amazon के फाइंडर है, इफ यू डोंट नो, जेफ बेजोस. ठीक है, सो इन्होंने क्या किया है? करमान लाइन जो है विच इज अप्रोक्सीमेटली एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1000 किलोमीटर्स, वहां पर कुछ लोगों को भेजा. ठीक है, सो हमारे इंडिया से कौन गए? गोपी थोट्टकुरा. ठीक है, ही इज फ्रॉम आंध्र प्रदेश एंड ही इज ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर. ओके, सो दिस इज वॉट यू नीड टू रिमेंबर, कैन बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन. Coming to the next question, this is match the following and it's extremely important because इसमें जितने भी renowned लोग हैं जिन्होंने कोई टाइटल या अवार्ड जीता है, that is very important. ठीक है, फर्स्ट आ जाते हैं जेनी अर्पनबेक. तो ये एक्चुअली एक जर्मन राइटर हैं जिनको मिला है इंटरनेशनल बुकर प्राइज. इन्होंने ये ओरिजिनली जो बुक है कैरियोस, बुक का नाम याद रखना है, नोबल कैरियोस जो है, इन्होंने जर्मन लैंग्वेज में लिखी है, जिसको ट्रांसलेट किसने किया है? ट्रांसलेटेड बाय माइकल हॉफमैन. याद रहेगा, 2024 का बुकर प्राइज है ये. उसके बाद आ जाते हैं पायल कपाड़िया. को स्टार मार्क कर लो. फर्स्ट हु इज हु के लिए भी फेमस है, और उसके बाद इंडियन जो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके अवार्ड जीत के आई है, बड़ी बात है. सो ग्रैंड प्री एट 77th कैन फिल्म फेस्टिवल, जो कि कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था. वहां इन्होंने क्या जीता है? शी हैज, इनका जो फिल्म है उसने ये अवार्ड जीता है, ग्रैंड प्री. ठीक है, फिल्म जो है वो लिखी भी और डायरेक्ट भी, दोनों की दोनों पायल कपाड़िया ने ही की थी. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द नेम ऑफ द फिल्म, नेम इज ऑल वी इमेजिन एज लाइट. ठीक है, ये इंडिया की फर्स्ट फिल्म है जिसको ये अवार्ड जो है वो दिया गया है. ठीक है, सो प्लीज ध्यान रखना. नेक्स्ट आते हैं रस्किन बॉन्ड. रस्किन बॉन्ड जो है उनको भी लेटली क्या मिला है? साहित्य एकेडमी फेलोशिप जो है वो अवार्ड उन्हें मिला है. ओके, एंड ये वाला पार्ट ना इधर आएगा, यहाँ पर आएगा. ठीक है, सो इनको ये अवार्ड मिला है. नॉट ओनली दिस, इसके अलावा इन्होंने भी रिसेंटली एक बुक भी लिखी थी, लास्ट, दैट इज पार्ट 1 में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है. जल्दी से उसका नाम बताओ. उसके साथ ही इज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड पद्मश्री एंड पद्म भूषण अवार्ड पहले. ठीक है, याद रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं निलोफर हेमदी, इल्हा मोहम्मदी और नरगिस मोहम्मदी. इनको कौन सा अवार्ड मिला है? इनको मिला है यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज. ठीक है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट. ये 2023 वाला जो अवार्ड है. एंड हैं कौन ये लोग? ये जो है पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं. क्या है? पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट हैं, याद रखना. ठीक है, और ये अभी जो गाजा में चीजें हो रही हैं उसको क्या कर रहे हैं? कवर कर रहे हैं. ओके, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, दैट इज पैलेस्टीन को स्टेट जो है, कुछ यूरोपियन नेशंस हैं, उन्होंने अभी एक्सेप्ट किया है कि ये एक स्टेट है, एक कंट्री है. ठीक है, ये किस किसने किया है? 3 नेशन है. फर्स्ट वन जो है दैट इज स्पेन, सेकेंड वन जो है दैट इज नॉर्वे, और जो थर्ड वन है दैट इज आयरलैंड. ठीक है, याद रहेगा. Coming to the next question, that is who has been awarded the 2023 Military Gender Advocate of the Year award. So first thing is you should know about Indian peacekeepers. Okay, so Indian peacekeeping जो missions होते हैं उसमें you'll be part of फौज, तो शायद आपको भी एक चांस मिलेगा. So Indian peacekeepers जो हैं ये दूसरे देशों में डिप्लॉय होते हैं
okay, and these programs are run by United Nation organization, okay. So abhi if I talk about the answer, that is Major Radhika Sen. ye jo thi kahan thi? She was in a Democratic Republic of Congo, ठीक है, यहाँ पे ये पोस्टेड थी. सो बेसिकली इसका आंसर हो गया ये, ओके. एंड कमिंग टू वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कर्नल वैभव अंटल. ही इज अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, याद रखना, ही इज रिटायर्ड, एंड ही वॉज सर्विंग एज अ स्टाफ मेंबर यूनाइटेड नेशन का जो डिपार्टमेंट है ऑफ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ठीक है. सो ही वॉज वेयर, आप शायद जान ही गए होंगे जगह का नाम भी. सो इट वॉज पैलेस्टीन, वहाँ पर थे, एंड ही वॉज इन गाजा, ठीक है. तो वहाँ पे डिप्लॉयड थे, एंड देयर वॉज वन ऑफ द अटैक्स बाय इजराइल ऑन गाजा, जहाँ पर इनकी जो थी डेथ हो गई थी. सो प्लीज प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, हैड बीन इन न्यूज लेटली, ओके. कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज which South American country became the first to host 2027 Women World Cup? So Brazil जो है वो होस्ट करने वाला है 2027 Women World Cup at FIFA Congress. इसके अलावा अगर मैं आपको Women World Cup के बारे में बताऊं, so first time जो Women World Cup था, that was hosted in 1991 by China, ठीक है. और इसमें जो जीता था, दैट वाज, जो टीम जीती थी, दैट वाज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की टीम जीती थी, ठीक है. 2023 में ये कहाँ हुआ था होस्ट? ये हर 4 साल में होता है, प्लीज टेक अ नोट ऑफ इट, है ना. सो 2023 में ये स्पेन में होस्ट किया गया था. टॉकिंग अबाउट मेंस, ठीक है, अभी लास्ट जो फीफा वर्ल्ड कप था, दैट वाज इन 2022. आप सब लोग जानते हैं किसने जीता था? अर्जेंटीना ने जीता था, और अर्जेंटीना का ये 3rd फीफा टाइटल था, ओके. टॉकिंग अबाउट सबसे ज्यादा आज तक जो टाइटल्स हैं, दैट इज 5 टाइटल कौन जीत चुका है? ब्राजील ही जीत चुका है, जो कि अब फीफा विमेन वर्ल्ड कप को होस्ट करने वाला है, ओके. फिर बात कर लेते हैं 2026 में अब जो फीफा वर्ल्ड कप होने वाला है मेंस. सो ये कहाँ होगा? दिस विल बी होस्टेड बाय 3 countries together, that is Canada, Mexico and United States of America. याद रहेगा. This is all the important information regarding FIFA. Coming to the next question, that is which of the following event matched incorrectly with the winner? ठीक है, सो ये आपके इवेंट्स है, यहाँ पर आपके विनर्स हैं. द फर्स्ट है रणजी ट्रॉफी. तो रणजी ट्रॉफी किसने जीती है? मुंबई ने जीती है, बिल्कुल सही है. एंड किसको हराया है? विदर्भ जो टीम है उसको हरा के, एंड इट हैज वन द मैच, ओके. और ये मैच कहाँ था? दिस वॉज इन मुंबई, जो वानखेड़े स्टेडियम है वहां पर था, ठीक है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज 2024 का थॉमस कप और उबर कप. चलो ये जल्दी बताओ, ये कप किससे एसोसिएटेड है? बैडमिंटन, हाँ कि ना? जल्दी नीचे बताओ, बैडमिंटन से एसोसिएटेड है या टेनिस से एसोसिएटेड है? जल्दी. सो ये जो है किसने जीता? चाइना ने जीता. इज इट राइट? हाँ, दोनों के दोनों कप्स जो हैं ये चाइना ने जीते हैं, एंड इट इज अ बैडमिंटन चैंपियनशिप. जिसने टेनिस सोचा, गलत सोचा है, okay. Moving on to the next one, that is IPL 2024. very very important. जो ये है कोलकाता नाइट राइडर्स ने जीता, बिल्कुल सही. अब आईपीएल में एक बहुत बड़ी चीज हुई है, दैट इज एक आईपीएल में रिकॉर्ड जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है ऑफ हाईएस्ट एवर आईपीएल रन्स, ठीक है. और ये जो है, दिस हैज बीन मेड बाय सनराइजर्स हैदराबाद. और कितने रन है इसमें? 287 रन्स जो है वो बनाए हैं. एंड दिस वाज अगेंस्ट विच टीम? इट वाज अगेंस्ट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, आरसीबी के अगेंस्ट, ठीक है. अच्छा, एक और बात बताना, जब कोलकाता नाइट राइडर्स जीती तो ये किसके अगेंस्ट मैच था? विच वॉज द टीम दैट लॉस्ट अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स. नेक्स्ट आ जाते हैं सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी. ये जो है किसने जीता है? सो दिस इज द वन दैट इज रॉन्ग. तो इसका आंसर जो है ये हो जाएगा सुल्तान अजलन शाह ट्रॉफी. दिस इज वन बाय जापान. किसने जीता है? जापान जो है उसने जीता है, एंड इट वाज द फर्स्ट टाइम, मतलब ये मेडन इवेंट था, मेडन ट्रॉफी थी, ठीक है, याद रखना है. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर जिन्होंने 12,000 T20 रन जो हैं वो स्कोर किए हैं. फर्स्ट आते हैं जेम्स एंडरसन. यू गाइज नो दैट ही इज ऑफ कोर्स नॉट द इंडियन क्रिकेटर. यहाँ पे इंडियन की बात की गई है. ही इज एक्चुअली फ्रॉम इंग्लैंड, और ये जो है 3rd बॉलर बने हैं in the history of Test cricket
जिन्होंने क्या किया है, हु हैज़ टेकन 700 विकेट्स। तो फर्स्ट और सेकंड कौन है, जल्दी बता दो। फिर आते हैं युजवेंद्र चहल पे। तो ये जो है, अगैन यू नो अबाउट हिम, ही इज़ नॉट अ बैट्समैन। तो क्या है ये, ही इज़ अ बॉलर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया है, ही हैज़ टेकन 350 विकेट्स टोटल इन T20 मैचेस। फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने 350 विकेट्स ली हैं T20 मैचेस, और इसमें दोनों आपके इंटरनेशनल और IPL जो हैं दोनों इंक्लूडेड हैं, ठीक है। फिर आ जाते हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है विराट कोहली, ठीक है। सो ही हैज़ अचीव्ड अ माइलस्टोन जिसके अंदर इन्होंने 12,000 जो है वो रन कंप्लीट किए हैं इन T20 फॉर्मेट, एंड ही इज द फर्स्ट इंडियन टू रीच दिस लैंडमार्क। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। इसमें हमें एक्सरसाइजेज एंड नेशंस जो हैं वो क्या करने हैं, मैच करने हैं। दीज आर बायलेटरल एक्सरसाइजेज, इंडिया के साथ हैं, ओके। फर्स्ट इज एक्सरसाइज डस्ट लिक। फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज 5th एडिशन था इस एक्सरसाइज का, और जो ये होस्ट की गई थी दैट वाज इन तरमेज, ओके। एंड इंडियन आर्मी, और अच्छा तरमेज जो है ये कहाँ, उज्बेकिस्तान में है। दिस वॉज बिटवीन इंडियन आर्मी एंड उज्बेकिस्तान की जो आर्मी है, ठीक है। सो ये कौन सी हो गई, आर्मी की बायलेटरल एक्सरसाइज हो गई। फिर आ जाते हैं हम समुद्र लक्ष्मण। समुद्र लक्ष्मण जो है ये इंडिया और मलेशिया के बीच में है। इसका कौन सा एडिशन था इस बार, इट वाज इट्स 3rd एडिशन, ओके। एंड ये जो था, इट वाज होस्टेड एट, इट वाज नियर द कोस्ट ऑफ विशाखापट्टनम, ठीक है। विशाखापट्टनम की कोस्ट के वहाँ पे था। एंड ऑफ कोर्स अगेन ये नेवल एक्सरसाइज हो जाएगी, है ना। तो दिस इज इट। उसके बाद आ जाते हैं हम, अच्छा एक और चीज़, मलेशिया से आई जस्ट रिमेंबर्ड वन थिंग कि दोस्ती 16 जो है ये क्या है, एक ट्राईलेटरल एक्सरसाइज है जिसके अंदर कौन कौन से कंट्रीज है। फर्स्ट वन इज मॉलडीव्स, ठीक है, दूसरी है इंडिया, और थर्ड वन इज श्रीलंका, ठीक है। सो प्लीज ये भी आपको याद रखना है। एंड दिस इज कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज, किसकी है, कोस्ट गार्ड की। मूविंग ऑन टू लामित्य 2024, ये जो एक्सरसाइज है इसका कौन सा एडिशन था, इट वॉज इट्स 10th एडिशन। फर्स्ट थिंग जो आपको याद रखनी है, ओके। और ये आर्मी की एक्सरसाइज है, एंड इट वॉज बिटवीन इंडिया एंड सेशल्स, ठीक है। फिर आ जाते हैं टाइगर ट्रायम्फ। टाइगर ट्रायम्फ जो है, अगैन इट इज अ बायलेटरल एक्सरसाइज, एंड ये बायलेटरल है लेकिन ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, याद रखना, बायलेटरल येट ट्राई, 3 सर्विसेज की साथ में एक्सरसाइज है जो कि इंडिया और US कंडक्ट करता है। और ये जो एक्सरसाइज है, दिस वाज कंडक्टेड इन ईस्टर्न सीबोर्ड, कहाँ पर, ईस्टर्न सीबोर्ड में जो थी कंडक्ट की गई थी, ओके। और इसका जो मेन काम है दैट इज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, HADR एक्सरसाइज, ओके। सो ये सारी एक्सरसाइजेज है, आई होप आपको ये सारी चीज याद हो गई होंगी। Coming to the next and the last question, that is, which city is being transformed into India's inaugural tri-service common defense station? So the answer for the same is Mumbai. Mumbai जो है, this is being transformed as a common defense station जिसमें आर्मी भी होगी, नेवी भी होगी, एयरफोर्स भी होगी, and it will be a facility जहाँ पे resources सब एक साथ एक ही जगह पे available होंगे of the 3 services, okay. So it's very important, and with this I end part 2 of the current affairs for FCAT 2024. Make sure that you revise all of these well, and I also want to ask you one question. So आगे कौन सी videos जो हैं that you want me to make for your FCAT examination to help you? As you know, मैं last minute revisions तो बनाती ही हूँ, but उसके अलावा if there is any specific video that you want from me, and even last minute revision में तुम कौन सी videos पहले चाहते हो, जल्दी से नीचे comment करो, and जो भी video का topic होगा जो सबसे ज़्यादा जिस पे comments आएंगे, that will be the video that I'll be making next, okay. So keep working smart as I always say, and I'll see you in part 3 of FCAT 2024 current affairs.